Can you hear me? Okay. So, before we start, let me quickly introduce Anand, not that he needs any introduction, and Prakhar. Somebody said no need. Yes, I agree, no need. But Anand is a scientist. He has a regular day job, which I keep forgetting. But I remember it sometimes when he sends me papers on malaria, which I don't understand anything of. But I realize that his day job is not being on TV and asking for 30 seconds, but he has a regular day job as a scientist. और प्रखर जी जो दूरदर्शन में हैं और जो बहुत जाने माने पत्रकार हैं, उनके नाम जैसा बोलता है वैसे ही प्रखर हैं, अपनी वाणी से भी, अपने विचारों से भी. और अभिषेक, I think you should introduce yourself. But before I move on, let's start the session. So I will start with Anand. We are, when we are saying that what has the Modi government achieved in 11 years, I would like to club it in various areas. जैसे sectors हैं, एक तो विकास, second is internal security, third is external affairs, and fourth is cultural narratives. So इन चारों क्षेत्रों को मिला के, I would like you to quickly, in 30 seconds if possible, how would you rate this government? If we go sector by sector, then in terms of the economy of the country, I would rate it 8 out of 10. In terms of the change in, for example, you look at bureaucracy, reduction of governance, maybe 3 out of 10. In terms of the usual, it's difficult to define it, but pride in being Indian, in the happiness quotient of that you're Indian, I would say 9 out of 10. In terms of corruption, it's very difficult to say because the Gandhis are still out. So, कुछ action लिया है कि नहीं लिया है, the Gandhi Vadras, no, but I think it's definitely less corrupt, much less corrupt than the Congress. Having said that, it's increasingly becoming difficult because सारे कांग्रेस वाले आ गए हैं बीजेपी में. Very true. But having said that, अभी कल ही अजीत पवार के उस पे there is a corruption investigation going on. So in terms of a lot of things and in welfare thing, I would say 10 out of 10. Internal security, external affairs. Right. External affairs, I would say, I mean, I'm speaking as a layman, 9 out of 10, straight away. Yeah. Standing up to the bullies, not acceding to the demand of the West, exposing their hypocrisy openly, like Piyush Goyal and Jai Shankar did recently. And, not basically kowtowing to the so-called powers who sit at a table and decide what is best for the third world. Internal thing, you've seen what, how devastating this government has been in terms of its actions against the Naxal thing. Yeah. So there again, 9 out of 10. 370 abrogation, 11 out of 10. और जिसमें मैं थोड़ा सा कम मार्क्स दूंगा वो अभी इशू मुझे समझ में नहीं आ रहा है, डिस्कस होंगे आते चल के. वो तो होंगे. नैरेटिव पे मेरी तरफ से ऐड कर लीजिए सर. नैरेटिव पे आई वुड से 1 out of 10. We'll take up this issue in detail, but I would ask the same question to Prakhar. What is your report card? आप मुझसे ना सेक्टर पूछते जाइए, मैं बताता जाऊंगा. मैं इतने सारे सेक्टर आनंद की तरह याद नहीं रख सकता. विकास डेवलपमेंट, ओके. इंटरनल सिक्योरिटी 10. थोड़ा विस्तार में भी बताएंगे तो भी चलेगा. देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी में तो साफ साफ नज़र आता है. मतलब मैं अपना किस्सा बता सकता हूँ आपको. मैं मीडिया में जब 10 साल मैंने काम किया यूपीए गवर्नमेंट के दौरान, तो हम लोग बैठे रहते थे और हम लोग, मेरा एक आदत थी, मैं सैटरडे संडे जब काम नहीं होता था, मैं उस समय एनडीटीवी में था, तो मैं अक्सर बोलता अरे यार आज कोई काम नहीं है, और मैं ये बोलता था और एक ब्लास्ट की खबर आ जाती थी. तो मुझे जब मैं बोलता था कि अरे यार आज कोई काम नहीं, तो मेरे आसपास के लोग मुझे टोकने लगते थे, अभी देख कहीं ब्लास्ट होने वाला होगा. और ये होता था. मतलब ब्लास्ट मतलब इतनी नॉर्मल चीज़ थी हम लोगों के लिए कि हम लोगों की, हम अब जैसे जो हम रिएक्ट करते हैं जरा सी भी घटना पे, तब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. मतलब हम यूज्ड टू हो चुके थे. तो ये तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं देख सकता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी में कितना बड़ा चेंज आया. तो उसमें से 10 of 10. एक्सटर्नल अफेयर्स 10 of 10. ओके.
विस्तार से बताइए वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देख लिया, हम हर जगह पर देख रहे हैं। जो एक भारतीय होने का जो गर्व है वो हम महसूस करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें विदेश नीति का योगदान है, ये दिखाई देता है। और सबसे खूबसूरत बात जो एज ए जर्नलिस्ट मैं हर चीज़ बताना चाहूँगा कि पहले MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो सिर्फ इंग्लिश में होती थी, और हिंदी मीडिया वाले भी इंग्लिश में सवाल पूछते थे, वो पूरी हिंदी में होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलाव हुआ है। वेलफेयर मैं तो उसमें 7। ओके, 7 out of 10। ओके, अब बात करते हैं जिस मुद्दे पे आई एम श्योर एवरीबडी इज वेटिंग फॉर कि ये सब तो है, अब कल्चरल नैरेटिव की बात करते हैं। कल्चरल नैरेटिव्स पे देखिए, नैरेटिव की जो लड़ाई है, देखिए वो तो सरकार उसमें क्या ही कर सकती है, लेकिन मैं अभी अगर हम पूरी सिचुएशन को माने और पिछले 11 साल को हम करें तो आज इतने लोग इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं, 3-3 जगह पर लगातार लाइव चल रहा है, लोग बैठे हुए हैं, सारे हॉल खचाखच भरे हैं। आज से हम 11 साल पहले इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो नैरेटिव की लड़ाई सरकार का काम मैं नहीं मानता उस हद तक है, लेकिन जो भी काम हुआ है वो ज़बरदस्त काम हुआ है। ठीक है, अभी भी काम होना बहुत बाकी है, बहुत काम होना बाकी है, लेकिन हम बोल पा रहे हैं, यहाँ पे हम जमा हैं, एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, खुलकर बात कर रहे हैं। ये देखिए, अभी बाहर में आ रहा था यहाँ से तो मुझे किसी ने ये दिया कागज़, वो बुक लिख रहे हैं, और बुक का नाम सुन के ही आप समझ सकते हैं कि नैरेटिव की लड़ाई किस तरह से चल रही है। सनातन हिंदू संस्कृति की दृष्टि में मानवीय विध्वंस के वैश्विक रक्त बीज, ये कोई हिम्मत नहीं कर सकता था आज से 11 साल पहले इस टॉपिक पे बात करने की। अभी किताबें लिखी जा रही हैं इस पे। तो नैरेटिव की लड़ाई तो खैर सरकार के अलावा हम सबका काम है, और मुझे लग रहा है कि उसमें तो पॉजिटिव है काफ़ी। अभिषेक, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सबसे पहले आनंद सर से प्रणाम सर। 10-11 सालों में सोशल मीडिया के आने के बाद जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत हुई है, उसमें आप कैसे चेंज देखते हैं, और क्या मेन स्ट्रीम मीडिया, ये सोशल मीडिया के जो राष्ट्रवादी वॉरियर्स हैं, चाहे वो ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या यूट्यूब पर हो, मेरे जैसे लोग, उससे क्या एक हेल्प मिल रही है सरकार को, कवर फायर मिल रहा है, और सरकार को ये लगता है कि बस ये चलने देना चाहिए, या हम, और इस चलने देने के चक्कर में एक नुकसान हो रहा है क्योंकि लेफ्ट वाला जो यूट्यूबर गैंग या फिर इंस्टा और इस पे है वो बेलगाम है। तो इस पे आपका एक जो चेंज है उस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है? नहीं, देखिए, ये एक तरह से आप हमेशा कह सकते हैं एक डबल एज स्वॉर्ड है। शुड द गवर्नमेंट हैंडल द मीडिया और शुड इट नॉट? बाय हैंडल आई मीन दैट यू शुड इंटरैक्ट विद द मीडिया। जैसे पहले जुमले होते थे मनमोहन सिंह के प्लेन में, आपने देखा होगा, सारे उठा के लोग जाते थे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे। कई लोगों ने चम्मच भी चुराए ठीक है, और वही लोग आज कह रहे हैं। पूर्व चैनल का आदमी था वो। अच्छा तो चम्मच था, फोर्क तो नहीं था ना साथ? चांदी की चम्मच थी। अच्छा, चांदी, ठीक है। मैंने कहा कलेक्शन बना रहे हो कि भाई ये रह गया था, अगली बार लेते हैं। चांदी की कोटेड थी, उसको लगा चांदी की है तो उसने उठा ली। रेट भाव, बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो ये कि आपने एकदम ठीक कहा, जो अर्स्टवाइल मेन स्ट्रीम मीडिया जिसे कहते हैं लेगेसी मीडिया, अमेरिका में मस्क कहता है, वो आधे लोग वो छोड़ के तो सड़क पे आ गए। और मैं सड़क पे क्या है, मेरा एक तरह से सड़क पे कई लोग तो लिटरली आए हैं, कई लोग सिम्बॉलिकली आ गए हैं। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कोई जर्नलिस्ट अगर सड़क पे आ जाता है, इसका सिंबलिज्म क्या है? इसका सिंबलिज्म ये है कि वो बिक चुका है ना। व्हाट डू आई मीन? क्या उसने किसी कॉर्पोरेट से पैसे ले लिए? हो सकता है, लेकिन वो बिक इसलिए चुका है क्योंकि उसने जर्नलिज्म की एथिक्स को छोड़ दिया। इफ़ ही इज़ अर्निंग मनी, मैं नाम लूँगा, रवीश का ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। टी शर्ट के कलर आपने देखे थे क्या? वो अभी जो उसने बताया था कि तेजस्वी यादव एक दिन में 17 टी शर्ट बदल रहे हैं, अलग अलग कलर बता रहे थे। अच्छा, नहीं वो मैंने देखा नहीं, रवीश को मैं ज़्यादा देखता नहीं, बहुत क्रांतिकारी पत्रकारिता। अच्छा, हाँ, एग्जैक्टली, क्रांतिकारी भी तो आ गए हैं, अभी आ गया। यस, तो इन्होंने क्या किया है कि इनकी एक तरह से रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, जो सब्सक्राइबर बेस है इनका। एंड दे फील हैप्पी व्हेन दे वेक अप एवरी डे एंड दे से, ओ मेरा सब्सक्राइबर बेस मिलियंस में चला गया है। लेकिन उसका एक दूसरा नज़रिया ये है कि वो अब प्रो इंडिया या फैक्चुअल चीज़ दैट इज़ इन फेवर ऑफ समथिंग गुड दैट मोदी हैज़ डन, वो कभी नहीं कर सकते। वो जैसे ही करेंगे, सारे सब्सक्राइबर्स उनको गाली देंगे और एक बाय एक अनसब्सक्राइब करना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। वो हिंदुज़म को गाली देंगे, उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, लेकिन वो इस्लाम के अगेंस्ट या फैक्चुअली कुछ कह देना वो नहीं कर सकते, बिकॉज वो सारे एन मास
डिलीट कर दें। कईयों ने तो माफ़ी मांगी है, कईयों ने अपनी ट्वीट्स डिलीट करी हैं, कईयों ने सब कुछ डिलीट कर दिया, कईयों ने ये रैशनलाइज कर दिया कि भाई हम दे हैव गिवन अ रीज़न व्हाई दे कैन नॉट बी क्रिटिकल ऑफ मुस्लिम्स एंड इस्लाम। तो ये एक रिजल्ट आया है कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया को गाली दे के तो निकल गए, गोदी मीडिया, लेकिन आप खुद ऐसी गोदी में जाके बैठ गए हैं जहां से आप मतलब आपका निकलना ही भाग चलना इम्पॉसिबल है। प्रखर सर, भारत माता की एक गोदी है और एक गोदी जो आप देख रहे हैं, जिनके बारे में सर बता रहे थे कि अब एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक यूट्यूबर है, जर्मनी वगैरह में बैठते हैं, उनका बड़ा रोल रहा था 2024 इलेक्शन में। ऐसा कांग्रेस ही मानते, हम नहीं मानते, लेकिन वो जैसे ही प्रो इंडिया वीडियो बनाते हैं इतनी गाली पाकिस्तान से पड़ती है कि वो वीडियो डिलीट होता है, माफी मांगने की नौबत आती है। तो एक भारत माता की गोदी में बैठे हुए पत्रकार हैं और दूसरे ऐसी गोदी में बैठे हैं जहां अब वो विवश हो गए हैं, वो एक कमरे में कैद हो गए हैं और वो सिर्फ एंटी इंडिया बातें करने के लिए मजबूर कर दिए गए हैं। तो ये जो पत्रकारिता का एक नया स्टैंडर्ड बन रहा है 11 सालों में जो हमने देखा, इस पे आपकी क्या राय है सर? देखिए 11 साल में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो पहले यूएस वगैरह में होता था कि अखबार किस तरफ है, किस मीडिया हाउस किस साइड पर है, ये मालूम रहता था। कम से कम अब भारत में जिसको अलग अलग नज़रिया होता है देखने का, लोग बोलते हैं गोदी मीडिया है, प्रो गवर्नमेंट है, प्रो मोदी है, कुछ लोग कहते हैं एंटी गवर्नमेंट एंटी मोदी हैं, लेकिन कम से कम ये एक अच्छाई हुई है इस पूरे बीच में कि जनता को ये मालूम पड़ गया है कि कौन किस तरफ है। पहले जब छोटे थे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं जिन लोगों को अपना आदर्श समझता था और जब मैंने दिल्ली में आके उनके साथ जब काम किया तो मेरे सपने टूट गए। मतलब मुझे लगा कि ये लोग क्या थे। अब देख रहा हूँ मैं कि किसी की पत्नी किसी पार्टी में है, कोई कहीं से राज्यसभा की जुगाड़ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो अब कम से कम सामने तो आ गए हैं। तो ये एक तो ये बदलाव आया। दूसरा, आपने जो कहा कि जो आनंद जी ने जो बात कही, बिल्कुल सही बात कही कि आप अपनी छवि के गुलाम हो जाते हो। जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हो तो आप छवि के गुलाम हो जाते हो, और ये इनके साथ हो चुका है। क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी कुछ ऐसा लिया या ऐसा बोला जो सच के करीब है, या जो आपका जो सब्सक्राइबर बेस बना है उसके अगेंस्ट आप जा रहे हो, तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ तो हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है, आज के जो आम दर्शक हैं उनको बहुत क्लियर है कि हम किसको देख रहे हैं, वो क्या है, उसके पीछे क्या है, कम से कम ये मालूम पड़ गया। मतलब सोशल मीडिया के आने के बाद सब जो है सब एक्सपोज हो चुके हैं। मतलब मैं अपने बारे में भी कोई अब दावा नहीं कर सकता, सबको सबके बारे में सब पता है। जो आनंद ने कहा और अभिषेक ने जो प्रश्न पूछा, उसी का एडेंडम मैं पूछ रही हूँ। एक पत्रकार थी, मतलब अब मैं उनको पत्रकार भी नहीं बोलती, जो कभी कांग्रेस के ज़माने में वो तय करती थी कि कौन मिनिस्टर होगा। मतलब वो कॉल करके बता सकती थी कि आज रिशफल होने वाला है तो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा पोर्टफोलियो उनको जाएगा। अब उनकी ये नौबत आई है कि वो शमशान में लैपटॉप लगा के वहाँ से लाइव करती हैं, बट दैट्स बिसाइड्स द पॉइंट। बट मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि मोदी सरकार में एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया है कि सरकार में अगर रिशफल होगा या कोई भी निर्णय होगा, उसकी भनक तक मीडिया में अब नहीं लगती। वो स्पेकुलेशन करते हैं, लिखते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन हमने देखा है कि वो जो भी बोलते हैं उससे बहुत विपरीत और बहुत उल्टा ही एक्चुअली हो जाता है। तो ये जो चेंज है उसको आप दोनों किस तरह देखेंगे? रान, देखिए, मीडिया तो छोड़िए, आधे बीजेपी वालों को नहीं पता कि 5 चीफ मिनिस्टर्स कौन। मैं अभी ऑन द स्पॉट टेस्ट लूंगा कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के जरा 4 चीफ मिनिस्टर्स बता दो। सो दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज देन पीपल आर वोटिंग फॉर द पार्टी एंड व्हाट इट स्टैंड्स फॉर रादर देन द पर्सन। So I would say कि that is something that is good that has happened. But I think एक और मैं ऐड करना चाह रहा था, लेकिन प्रखर जी अगर if you allow me, कि देखिए एक नेगेटिव कॉनोटेशन भी है इसका, मीडिया से इंटरेक्शन ना करना। आप जस्टिफाइड थे बिकॉज मोस्ट ऑफ देम वर सोल्ड आउट पीपल एंड विद एन एजेंडा, लेकिन सारे तो नहीं थे ना। पब्लिक भी सवाल भले पूछना ना चाहे लेकिन आंसर्स चाहती है। तो एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ इंडियन डेमोक्रेसी के लिए नेगेटिव ये हुआ है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि आवर प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी क्वेश्चनड। ही इज़ हैविंग अ वन वे इंटरेक्शन ऑन ट्विटर एंड ही इज़ वेरी सक्सेसफुल एट इट। अब आप ट्रंप को जितनी भी गालियाँ दे दीजिए, लेकिन आज तक ट्रंप का ये रिकॉर्ड है कि किसी भी क्वेश्चन से ही इज़ नॉट शर्क्ड अवे। भले उसको गुस्सा आए रिपोर्टर पे, भले वो कह दे फेक न्यूज़ जो भी कहे, क्वेश्चन ज़रूर लेता है।
मैं 10 क्वेश्चन लेके घूम रहा हूँ कि कभी मुझे मोदी जी मिल जाएं सड़क पे, घूमते फिरते मिल जाएं। हाल ही ऐसा चांस नहीं होगा क्योंकि हमारे एरियाज़ में वो नहीं घूमते हैं जहाँ सड़कों पे पॉट होल्स हों। लेकिन मेरे 10 सवाल हैं, और ये नहीं कि मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत लोगों को ये चांस मिला है पूछने का, जो कि मोदी जी समझते हैं, उनको इंटरव्यूज़ देते हैं, अच्छे जर्नलिस्ट हैं। इनफैक्ट 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले ही गेव 72 इंटरव्यूज़। ये 10 सवालों में से एक भी सवाल नहीं पूछा उनसे। दैट मीन्स देर इज अ डिस्कनेक्ट दैट आई होप द गवर्नमेंट एटलीस्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ इट। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ जेन्युइनली कि मोदी जी हर देश गए, हर स्टेट में मल्टीपल टाइम्स गए, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई वहाँ पे उन्होंने देखा। गुजरात में आपका प्लेन का क्रैश हुआ, अगले दिन वहाँ पे थे, मोरबी ब्रिज पे थे। 2.5 साल से मणिपुर क्यों नहीं गए? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। मुझे रीजन पूछना है, क्या रीजन था? किसी एडवाइजर ने उनको कह दिया कि मत जाइए, और क्यों नहीं गए? बीजेपी सरकार की तो गलती थी ही नहीं। द होल मणिपुर इशू, यहाँ पे तो बीजेपी का भी है कि परसेप्शन क्लियर नहीं करते हैं, वॉज एक्चुअली क्रिस्टलाइज्ड बाय द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने ये पूछा था कि वाइट पेपर लाइए कि मैतीज को आप सोशल एसटी स्टेटस देना चाहते हैं कि नहीं, जो कि जब कांग्रेस की सरकार थी यूपीए में उन्होंने ये पूछा था, जब बीजेपी सरकार थी पहले फिर बनी उन्होंने ये पूछा, और अब हाई कोर्ट ने पूछा। इस बीजेपी सरकार का और मोदी का इसमें कोई लेने देना ही नहीं था। द होल थिंग सडनली इरप्टेड एंड हाई कोर्ट रिडैक्टेड इट्स डिमांड। मतलब आप ये देखिए, यहाँ पे इतने कांप रही है, जुडिशरी कांप रही है, एंड मोदी जी डिड नॉट गो। Like that, there are so many questions on Nupur I want to ask. कि ऐसा क्या हो गया कि you threw Nupur under the bus? और ये मैं सिर्फ ट्वीट कर सकता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया हुआ है कि अपनी पार्टी, आपकी पार्टी ने वो कर दिया, कतार से पता नहीं क्या है, but public needs to know these questions. Yes, he is popular. Yes, he is loved. Yes, he is the best bet we have right now. But that doesn't mean that the public will not be answered to. That is one negative thing that has happened. आपको दिलीप मंडल से पूछना था ये क्वेश्चन, गलत आदमी से पूछना। देखिए, आनंद की बात बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आनंद जी कि सवाल पूछना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि ये सवाल पूछने की आज़ादी भारत में कभी किसी प्रधानमंत्री से मिली ही नहीं। जो आप कह रहे हैं कि मोदी से जो आपके मन में सवाल पूछते हैं, कि वो सवाल मेरे मन में भी है, खासकर मणिपुर वाला सवाल मेरे मन में है। इसके अलावा और भी सवाल मेरे मन में है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम होना था वो काम नहीं हुआ, वो सवाल मेरा पूछने की इच्छा होती है। लेकिन ये सवाल पूछने वाली जो एक होता है कि हम अपने आप को लोकतांत्रिक दिखा रहे हैं, और एक होता है सच में लोकतांत्रिक होना। तो भारत की डेमोक्रेसी की शुरुआत की प्रॉब्लम है। मैं अगर मनमोहन सिंह की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, मुझे हालांकि मनमोहन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कभी अटेंड नहीं करी, लेकिन जो अटेंड करते थे मुझे मालूम है वहाँ पर कैसे काम होता था। नंबर दिए जाते थे 176, 177, 178, और नंबर बोलकर वो नाम भी नहीं बोला जाता, 178 नंबर, वो 178 वाला पत्रकार खड़ा होता था, सवाल पूछता था। तो उसी में से एक पत्रकार, उनका नंबर 178 था, मैंने देखा था। तो एक दिन कुछ कहीं जगह पर बोल रहे थे, तो मैंने उनको सिर्फ इतना याद दिलाया 786 नंबर का भी जर्नलिस्ट का तो मैंने उनसे यही बोला कि मैंने आप 178वें नंबर के पत्रकार थे ना। मतलब ये क्वेश्चन और आंसर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं, व्हाइट हाउस की वो होती है, वो अलग होती है। लेकिन भारत में जो पीएम से जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो बिल्कुल तय रहते हैं। अब मैं आपको मनमोहन सिंह का एग्जांपल देता हूँ कि एक बार मनमोहन सिंह ने मिलने के लिए बुलाया सारे संपादकों को, अचानक से मिलने के लिए बुलाया था। उसमें एक कांग्रेस के सांसद हैं, पूर्व मंत्री, उनकी पत्नी जो एक चैनल की मालिक हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह से सवाल पूछा कि आप सचिन तेंदुलकर के लिए क्या सोचते हैं, वो 100 सेंचुरी कब बना पाएंगे, टाइप्स कुछ ऐसा ही कोई एक सवाल पूछा था। तो पत्रकारों को जब सवाल पूछने के मौके भी मिले तो उन्होंने किस तरह के सवाल पूछे ये भी हमको देखना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम ही है शुरुआत से। राजदीप बॉक्सर ने पूछा था सोनिया गांधी जी से कि साड़ी कुछ ऐसा पूछा था ना। He has also said what kind of food do you cook? Do you cook पास्ता Italian बनाते food? हैं। क्या पास्ता होता है, बनाती है? मैं आपको एक यहाँ पर, चूंकि मैं जयपुर डायलॉग को अपना घर ही मानता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खुलकर बात करता हूँ। तो मुझे नरेंद्र मोदी जी का तो इंटरव्यू लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन सोनिया गांधी जी का मैंने इंटरव्यू लिया, और बड़ी कम उम्र में लिया था। और मैंने इंटरव्यू लिया था 2003 के इलेक्शन के पहले। तो इंटरव्यू कैसे लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सहारा समय एक न्यूज़ चैनल था, उसमें काम करता था, और उस समय मुश्किल से 25-26 साल का रहा हूँगा, 2-3 साल का मेरा करियर था। और मुझे मेरे दिल्ली ऑफिस से टास्क मिला कि नहीं, तुमको तो आज तक वालों ने इंटरव्यू ले लिया सोनिया गांधी का, तुम्हें तो इंटरव्यू लेना ही पड़ेगा चाहे जो हो जाए।
और मेरे बॉस सुधीर चौधरी हुआ करते थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तुम बिना इंटरव्यू लिए नहीं आओगे। अब मैं उनको कैसे समझाता कि मैं आज तक मैं काम नहीं करता हूँ, मुझे कैसे सोनिया जी इंटरव्यू दे देंगी। फाइनली सोनिया जी के साथ रहती थी शैलजा उस वक्त। तो शैलजा जी के मैं पीछे पड़ा कि नहीं, मुझे इंटरव्यू लेना है, मेरी नौकरी चले जाएगी, वो चले जाएगी। तो फाइनली सोनिया जी मुझे इंटरव्यू देने को तैयार हो गई। सिद्धार्थ नगर गोरखपुर के पास एक जगह है, वहाँ पर मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई। सुबह 6 बजे का मुझे समय मिला और जब मैं 5:30 बजे वहाँ पर पहुँच गया था तो मुझे बाकायदा 5 सवाल दिए गए। वो 5 सवाल इतने वाहियात किस्म के सवाल थे जिसको मैं बता नहीं सकता। वो पहला सवाल था, उसमें आप गन्ना किसानों के लिए क्या सोचती हैं, महिलाओं के राजनीति में आने को लेकर क्या सोचती, मतलब तो भूल भी गया। मतलब वो इतना बड़ा इंटरव्यू था मेरी ज़िंदगी का, लेकिन उससे घटिया इंटरव्यू मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो 5 सवाल दिए गए और मैं उस प्रेशर में था। क्योंकि एक तो मेरी उम्र में, जिस चैनल में काम कर रहा हूँ, सोनिया गांधी जैसा व्यक्तित्व है जो मुझे इंटरव्यू देने को तैयार हो गया है। तो जाहिर बात है वो 5 सवाल पूछूंगा, मैं दबा हुआ हूँ, मुझे नौकरी बचानी है। लेकिन मैंने हिम्मत की, मैंने 6ठा सवाल पूछा, क्योंकि उस वक्त तक राहुल गांधी का फाइनल नहीं हुआ था अमेठी से चुनाव लड़ना। तो मैंने पूछा सोनिया गांधी से आखिरी में कि राहुल कब राजनीति में आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा थैंक यू और बोल के वो अंदर चले गई। मैंने जब तक मैं कुछ बोल पाता वहाँ से बोली, कुछ इस तरह से बोला कि है यंगशेप आज सेव्ड योर जॉब, ऐसा कुछ करके उन्होंने बोला। मतलब उनको तक मालूम था कि इस लड़के की मैं नौकरी बचाने के लिए उसको इंटरव्यू दे रही हूँ। तो ये इस स्थिति में खुलकर बता रहा हूँ, ये होता है। तो जब आपको सवाल दिए जाते थे, अब आप पूछ रहे हो और 6ठा सवाल आपने मन से पूछ लिया, सामने वाला जवाब नहीं दे रहा, आप क्या कर लेंगे। तो ये स्थितियां हमेशा से रही हैं। मतलब ये कोई, इनफैक्ट वो करण थापड़ ने भी बताया कि चिदम्बरम ने भी वेटिंग करी थी। बिल्कुल चिदम्बरम को सवाल दिए गए कि यही सवाल पूछेंगे और बाद में ये बताया भी उसने। मतलब आप उनकी मतलब वो गट्स देखिए कि वो खुलेआम बोल रहे हैं कि भाई देखो ये हमने सवाल पूछे और ये इसने आंसर किया। लेकिन इसका एक ही मेरा वितर्क ये है कि उन सब लोगों को लात मार के देश की जनता ने खदेड़ दिया ना। सो मोदी इज बेटर देन देम। देखिए, आप जो 72 इंटरव्यू की बात कर रहे हो, 70 से ज़्यादा इंटरव्यू दिए, उसमें से कई वो लोग हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने इंटरव्यू दिया। और यकीन मानिए, मतलब हम पे ठीक है, हमें तो बोला जाता है गोदी मीडिया, लेकिन फिर भी मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ। जब मैं सोनिया गांधी वाला किस्सा ईमानदारी से बता सकता हूँ तो ये भी बता सकता हूँ, कोई भी सवाल पीएमओ की तरफ से नहीं दिया गया था। अब ये पूछने वाले पर निर्भर करता है कि उसने क्या पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन उसको ये प्रेशराइज नहीं किया गया कि वो मणिपुर पर ना पूछे। अब ये दबाव, आप कोई कह रहा है झुको और आप झुकने की जगह लेट जा रहे हो, तो ये उस व्यक्ति की दिक्कत है। कोई हिम्मत तो करे ना। सवाल ये है कि लोग हिम्मत नहीं करते, वो एक अलग विषय है। मैं एक सवाल आगे कि इन्होंने अभी हाई कोर्ट का जिक्र किया और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जो ऐसा सेक्टर है जिसमें मेरी खुद अपेक्षा बड़ी भंग हो गई इस सरकार से, दैट इज़ जुडिशियल रिफॉर्म्स। बिकॉज एट एवरी पॉइंट यू सी एवरी डे द जुडिशरी इज टेकिंग इट्स ओन थिंग एंड द जुडिशरी इज बेसिकली टेकिंग डिसीजंस और मेकिंग ऑब्जर्वेशंस दैट आर ब्लेटेंटली एंटी हिंदू, और वो बाकी दूसरे धर्म पे कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन हिंदुत्व पे करते ही रहते हैं और बहुत भद्दे शब्दों में करते रहते हैं। जो हमने नुपुर की केस में भी देखा, अभी जो रिसेंटली केस हुआ उसमें भी देखा, हर केस में देखा। हमारे कोर्ट्स को कश्मीरी पंडितों का इश्यूज उठाने से फुर्सत नहीं है, लेकिन वो 85 ईयर ओल्ड की इंदिरा जयसिंह की याचिका है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अबाउट द रिडक्शन ऑफ एज ऑफ कॉन्सेंट। सो आई वॉन्ट टू आस्क बोथ ऑफ यू, जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था और क्या नहीं हुआ? आनंद, आप? नहीं, मेरे पे ऑलरेडी एक बार कंटेम्प्ट हो चुका है, इसलिए मैंने कहा। पर जेसाई ने बचा लिया था। इनफैक्ट अभी मैंने अपनी ईमेल एक मैं पढ़ता नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ से किसी को मिल गई, वहाँ पे दे हैव आस्क्ड सुओ मोटो कि आई शुड बी हेल्ड अंडर कंटेम्प्ट। कोई तमिलनाडु की एक लॉयर कलेक्टिव है, तो ये चलता रहता कि आपने ये चीफ जस्टिस गवाई के अगेंस्ट कुछ कहा। मैंने नहीं कहा, उन्होंने ही कहा। मैंने तो बात रिट्रेट करी कि उन्होंने क्या कहा। नो, आई थिंक दिस इज यू आर सो राइट, वी हैव कंप्लीटली मिस्ड द बस, कंप्लीटली मिस्ड द बस। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट मोदी हैज़ टू स्टैंड अप एंड से, ही कांट लॉजिकली stand up like we do and criticize every flawed decision of the court. But at least the law minister can point out the lacuna. Why has the law minister ever stood up and said this is wrong? And I'm not saying कि आप ट्रम्प की तरह कहो जो कि वो जज को भी गालियां देना शुरू कर देता है, rubbish judge, this, that. No. But a message has to go that look, stop having double standards, stop being hypocritical.
and start at least reinforcing the decisions, your own orders. For example, जब उदयनिधि स्टालिन ने कहा सनातन धर्म को इरेडिकेट करो, उससे 1 साल पहले का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि कोई भी हेट स्पीच होगी, किसी भी स्टेट में होगी, पुलिस विल इमीडिएटली फाइल एन FIR, विल लॉन्च अ केस. 1.5 साल हो गया, तमिलनाडु पुलिस ने नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं दिख रहा. So, you're absolutely right. Not just the fact that you have a situation where the Supreme Court itself or the judges do not ask for a quantum jump in the percentage of GDP that needs for us to set up more courts, to have more judges. I mean, 34% of the High Court judges' positions are lying vacant. 20% of all judicial positions are lying vacant. इस देश में कैसे हो सकता है? नहीं, वो क्या है, वो जुडिशियरी ऑलरेडी जो जजेस हैं उनके 1 ही 2 बच्चे ही होते हैं ना, तो सारे पोजीशंस कैसे फिल हो जाएंगे? उनको तो मतलब if they had more kids it would be filled. And in fact, to corroborate what you said, every Supreme Court judge of this India of India has come out only of since independence 200 families. जस्टिस वर्मा जी देख रहे हैं, देखिए, जस्टिस वर्मा जी ये शो देखेंगे, बुरा लगेगा. आनंद जी ने जो बात उठाई, आनंद जी भी उस कार्यक्रम में थे. 5 जनवरी का कार्यक्रम था, मकर संक्रांति वाला, जो उनका उस दिन स्थापना दिवस पर होता है. तो मुझे अर्जुन राम मेघवाल का उस दिन उनके साथ इंटरव्यू करने का मौका मिला. 1 घंटे का करीब मैंने इंटरव्यू किया, और मेरे ज़िंदगी में जितना मैं सोच सकता था जुडिशरी पर रिलेटेड, वो सारे सवाल मैंने उनसे पूछे. मुझे उनका चेहरा देख के लग रहा था कि मेरी बात से कन्विंस है, लेकिन वो हर बात जो है वो डक करते जा रहे थे मेरे हर सवाल पे. मैंने उस समय सुहास का एक केस हुआ था. सुभाष का नाम आपने सुना होगा, एक लड़का था जिसने 1-1.5-2 घंटे का टेप बनाया था. 498 का मामला था. अतुल सुभाष. उसने सुसाइड कर लिया था, और वो जज के ऊपर, मतलब आप तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज की बात की, उसने लोअर कोर्ट की जज, जो फैमिली कोर्ट की जज थी, उस पर इतने गंभीर आरोप लगाए थे कि किस तरह से उससे पैसा मांगा गया, किस तरह से उसको प्रताड़ित किया जाता था, किस तरह से उसकी तारीखें बाद में बार बार लगा दी जाती थी. वो सारे सवाल पूछे, वो डक करते रहे. मैंने ये सवाल उठाया उस समय उस क्वेश्चन में, और आज भी मैं कहता हूँ कि जब एक IAS ऑफिसर जो शुरुआत करता है, तहसीलदार का काम सीखता है, फिर एडिशनल कलेक्टर बनता है, फिर वो बनते बनते कैबिनेट सेक्रेटरी तक पहुँचता है. एक IPS जो शुरुआत से एक थाने से काम सीखता वो कभी CBI डायरेक्टर बनता है, IB का डायरेक्टर बनता है. लेकिन हमारे जजेस ऐसे होते हैं जैसे भगवान बुद्ध को जो बोधिसत्व की प्राप्ति अचानक हुई थी ना, मतलब आप जीवन भर जो है लेबर लॉ के केस लड़ रहे हो, उसके वकील हो, और अचानक एक दिन आप हाई कोर्ट में बैठ के भारत के संविधान पे ज्ञान बांटने लग जाओगे. जीवन भर आपने क्रिमिनल केसेस हैंडल किए, अचानक एक दिन जो है वो आप किसी और मामले पर हाई कोर्ट जज बन के बैठ जाओगे. तो जो व्यक्ति जो वकील रहता हुआ पूरे जीवन कानून के साथ छेड़छाड़ किया, जो कानून के साथ खेल का जो वो फ़ायदा उठाता रहा, जो भी लूप होल्स हैं, वो एक दिन जज बन के अचानक वो कैसे बोधिसत्व की प्राप्ति हो जाती, मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया. और मुझे दूसरी बात समझ में नहीं आती है कि ये सारा जो लॉ का ज्ञान है, जो कानून का ज्ञान है, वो एक ही परिवार के अंदर क्यों आता है, मतलब ये दूसरे लोगों में क्यों नहीं बढ़ता है. तो ये बहुत सारे सवाल थे, मैंने पूछे, लेकिन मुझे उस दिन उन सवालों के जवाब नहीं मिले. और पिछले 11 साल में बस यही कहूँगा, एक बीजेपी का आदमी खड़ा हुआ है जिसने बोला है बेबाक, निशिकांत दुबे जी. हाँ, देखिए प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि सरकार अगर कोई गलत निर्णय करती है या करप्ट होती है या व्हाटएवर, तो एक मिनट, लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस. तो आप अगले इलेक्शन में उस सरकार को बदल सकते हो, उसका हक है आपके पास. अगर कोई ब्यूरोक्रेट बहुत अपने पद से हट जाता है तो एटलीस्ट नाम के वास्ते उसका सस्पेंशन तो होता है. लेकिन जुडिशरी केवल ऐसा सेक्टर है जिसमें मतलब कोई गुनाह करे तो भी वो ही करे, जो उसकी जजमेंट करे वो भी वही करे. इसीलिए एक जज के ऊपर जिस पे करप्शन का आरोप है, जिसके ऊपर वो वीडियो टेप मिला है, उसकी सज़ा ये है कि उसको उसके पेरेंट कोर्ट में भेज दो और वहाँ वो जजमेंट भी दे दे. ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. एनीवे दैट्स बिसाइड्स वन, आप कंप्लीट करिए. आप ही की बात जो कहना चाह रहा हूँ कि मतलब इसके लिए मीडिया कितना दोषी है, हम लोग भी कितने दोषी हैं, यहाँ पर बैठे लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि क्या होता है कि एक IAS होता है जो जिले का कलेक्टर है या SP है, वो रात भर काम करते हैं. वो सुबह पहुंच जाएंगे, ऐसे समय आते हैं ज़िले के अंदर जब स्थिति बिगड़ती है तो 3-3 दिन तक बिना सोए वो लोग काम करते हैं. लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक बार हमारे चीफ जस्टिस थे, CJI थे, उन्होंने रात में 9 बजे बैठकर काम कर लिया था. अगले दिन भारत के सारे हिंदी और अंग्रेजी अखबारों के फ्रंट पेज की 4-4 कॉलम की खबर थी.
तो भैया उसने अगर रात में 9 बजे काम कर लिया, जब इस देश में करोड़ों केस पेंडिंग हैं, और रात में एक दिन वो 9 बजे तक बैठ गया अदालत में, तो कौन सा एहसान कर दिया? और मीडिया उसको अगले दिन छापता है। नहीं, तो रात को तो आतंकवादियों के लिए खुलते ही रहे हैं, ऐसा कौन सा है, नया तो है नहीं। इसके अलावा सुन लीजिए, इसके अलावा आप देखिए कि 9 बजे तक तो राहुल गांधी भी काम करते हैं ऐसे। और तीस्ता सीतलवाड़ को तो रात में ही जमानत मिली थी, ऐसी भी बात नहीं है। सबसे अजीब बात यह है कि जो जजेस जो हैं, हम लोग कितने केसेस, झूठे रेप केसेस लगते हैं लोगों पर, हम जिसके ऊपर केस लगाया जाता है हम उसकी शक्ल दिखा देते हैं, उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। और कितने सुसाइड हो चुके हैं इस देश में कि किसी को झूठे रेप केस में किसी को फंसाया गया, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि टीवी के अंदर उसकी तस्वीर दिखा दी गई थी। एक जज पे एक उसके इंटर्न ने यहाँ पर भारत में आरोप लगाया कि उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन का केस उसने लगाया। हमको ये ऑर्डर मिले मीडिया को कि उस जज का आपको नाम नहीं लेना है। ये इम्यूनिटी किसी आम आदमी को क्यों नहीं है? उसका तो जिस दिन एफआईआर दर्ज होती है हम चीख चीख के टीवी पर नाम बताने लगते हैं, नेताओं के नाम हम चीख चीख कर बताने लगते हैं। याद आया, अब मीम्स बनने लग गई हैं। एक वो जो जस्टिस थे यशवंत वर्मा, जिनके घर में कैश मिला, उनकी एक बहुत फेमस मीम है, वो ऐसे फोटो है, ऐसे देख रहे हैं और नीचे लिखा है ऐसे घूर के क्या देख रहा है, हिम्मत है तो एफआईआर करके दिखा। हाँ, सही बात है। मेरा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बेचैनी तब होती है जब आप सबरीमला पे जजमेंट दे देते। 11 साल में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। एक और सबरीमला के अलावा उनका मुसलमानों की तरफ से भी लगा था, कुछ वो महिलाएं आई थी कि हम भी मस्जिद में घुसे, वो अभी तक होल्ड में है। मेरा सर जुडिशियरी में बदलाव से ज़्यादा कंसर्न ये है कि सरकार को नहीं दिख रहा है कि मंदिरों के सोना चांदी लूटा जा रहा है। तमिलनाडु में अभी सबरीमला का हमने देखा, इसके अलावा कई और। तो ये सब देखने के बाद भी जुडिशियरी जब वक्फ बोर्ड की बात करता है, उसी टाइम सनातन बोर्ड की बात क्यों नहीं उठती? इसमें आप किसको दोषी ठहरा रहे हैं, सरकार को या जुडिशरी को? बोथ, दोनों दोषी, बराबर दोषी है। बिल्कुल सीधी सी बात है। मतलब जुडिशरी कोई गलत काम उठा रही है और सरकार की, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कंसिडर्ड जजमेंट्स ओवरटर्न करनी चाहिए जैसे कांग्रेस करती थी बेबाकी से। शाहबानो जजमेंट इज़ वेरी फेमस जजमेंट, कंसिडर्ड जजमेंट को ओवरटर्न कर लिया फॉर अपीजमेंट, वेरी फेमस थिंग। बैंक नेशनलाइजेशन को ओवरटर्न कर दिया, प्रिवी पर्सेस को ओवरटर्न कर दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ओवरटर्न हुई है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 सालों में सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को ओवरटर्न किया है, वो है SC/ST एक्ट के ड्रैकोनियन प्रोविजन, जिसके सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट था, वो ओवरटर्न कर दिया। और वो भी सारी पार्टीज ने हाँ कहा तब ओवरटर्न किया। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ओवरटर्न किया और कांग्रेस कह रही हो नहीं ये गलत किया, सबकी सहमति से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ओवरटर्न कर दिया गया। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि शबरीमला का जो जजमेंट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो परसीव्ड डिस्क्रिमिनेशन था। परसीव्ड इसलिए था कि ऐसे बहुत सारे लॉर्ड अयप्पा के टेम्पल्स हैं जहाँ पे विमेन आर अलाउड। ओनली इन दिस केस वेयर द डेटी इज सेलिब्रेट इज दैट विंडो प्रोवाइडेड। दूसरी बात, देर आर half a dozen to more temples where men are not allowed. तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ? और जज साहब को संस्कृत भी नहीं आती थी कि उनको स्क्रिप्चर्स पढ़ के समझाया जा सके कि सर ये आप गलत कर रहे हैं। And the point is, did Modi government overturn the Sabrimala judgment? No. Congress overturned the Shahbano judgment. तो हर बार ये कहते हैं फाशिस्ट हिंदुत्व राष्ट्र बन गया क्योंकि हिंदूज के लिए हो रहा है। यहाँ पे जो परसीव डिस्क्रिमिनेशन पे गलत जजमेंट दिया गया उसको भी आप ओवरटर्न नहीं कर रहे हैं बिकॉज यू आर वरीड अबाउट आई डोंट नो यू नो व्हाट द रेपरकशंस ऑफ इट। सो आई थिंक जैसा मैंने कहा, मैं जस्ट एंड विद दैट कि ताली दो हाथ से बज रही है यहाँ पे, और एक सरकार का हाथ है और दूसरा जुडिशरी का। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मेरा एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एक जजमेंट आता है हाई कोर्ट का, वो भी कानून का किताब पढ़ के जज बना है, और बिल्कुल उसका रिवर्स जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट में। अगर दोनों ने सेम किताबें पढ़ी है और हाई कोर्ट के जज को आप ऑर्डर टर्न आउट कर रहे हैं, तो क्या ऐसा प्रावधान लाया जा सकता है कि फिर उस हाई कोर्ट के जज को पनिश किया जा सके? क्योंकि दोनों में से किसी एक की तो गलती है, दोनों से आप लोग बारी बारी से सर।
देखिए मैं तो इसका क्या बताऊं कि हाई कोर्ट का फैसला क्यों बदला। वैसे तो बहुत से हज़ारों केसेस आप देख लेंगे, जैसे हाई कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने बदले हैं, लोअर कोर्ट के फैसले हाई कोर्ट ने बदले हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब मैं नहीं, खास करके मेरा इस पे क्लियर कर दूं, हिंदूज को लेकर, जैसे काशी वाला मैटर हो गया, मथुरा वाला मैटर हो गया, आराम से स्टे लगता है लॉजिक बिना लॉजिक के। तो एक तो कोई दोनों तो सही नहीं हो सकते। मेरा कंसर्न सिर्फ ये है, या तो हाई कोर्ट का जज गलत है या सुप्रीम कोर्ट का जज गलत है, तो कोई एक जो गलत है उसके लिए एटलीस्ट रेटिंग निकालिए कि भाई इस हाई कोर्ट के जज का अगर जजमेंट गलत हो रहा है तो उसकी रेटिंग नीचे जाएगी और वो सुप्रीम कोर्ट या फिर उसका प्रमोशन नहीं होगा। देखिए, मुझे तो जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता है, और जो मैंने उस दिन कानून मंत्री से भी जब चर्चा हुई थी तो मैंने यही उनको सुझाव दिया था सवाल पूछने के माध्यम से, जैसे एक आईएएस सर्विस होती है, आईपीएस सर्विस होती है, ऐसे जुडिशरी की सर्विस होना चाहिए। उसको लोअर कोर्ट से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट होना चाहिए। वो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाए, तो उसको हर तरह की चीज़ों के केसेस की, हर तरह के केसेस हैंडल करने की एक प्रैक्टिस होगी, उसको समझ विकसित होगी उसकी। जो मैंने बात कही कि एक व्यक्ति है लेबर के केसेस ले रहा है और अचानक जो है वो क्रिमिनल के केसेस सुनने लगेगा हाई कोर्ट जज के रहते हुए, इसलिए उसकी प्रॉपर एक ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो बात तो होती है, मंत्री जी भी बोलते हैं कि नहीं हम इस पर विचार कर रहे हैं, ये हमारी एजेंडे में है कि हम इस तरह की एक जुडिशरी सर्विस लेकर आएंगे, लेकिन वो आज तक ना कोई चाहता है, ना उस पर कोई बात करना चाहता है, क्योंकि उससे कोलिजियम खत्म हो जाएगा, जो परिवारवाद चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको अपने से जुड़े मामले सब ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। समस्या ये है। आनंद सर, इसी पे आपका। देखिए, समस्या ये है कि जब सरकार एनजेएसी लाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया, तो सरकार चुप क्यों हो गई? बिल्कुल गलती है। वही है ना कि अब गलती किसकी है? अब जो आपने सवाल पूछा वो थोड़ा सा न्यूएंस्ड है, वो इसलिए क्योंकि एज अ साइंटिस्ट आई फील वेरी डिस्टर्ब्ड कि इट इज़ लॉ इज़ टू बी इंटरप्रेटेड। मेरे हिसाब पे लॉ है, उसके दो इंटरप्रेट, कुरानिक वर्ष तो है नहीं कि दो इंटरप्रिटेशन हो। चल तो उसी हिसाब से रहा है ना सर, उसी तरह से चल रहा है, तो शरिया बन गया है लॉ। हाँ। सुप्रीम कोर्ट शरिया बन नहीं, गया। आजकल तो ट्विटर पे लोग कहने भी लगे हैं। सो बेसिकली पॉइंट ये है, अगर आपने लॉ पढ़ लिया, एक कोर्ट पढ़ लिया, हाउ कैन यू हैव टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ इट? एंड इफ यू डू, दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड लॉ और इट्स नॉट अ लॉ दैट इज रिटन प्रॉपर्ली। बिल्कुल, मेरा यही पॉइंट था। अब इसी में आप देखिए, जो कंसेंट वाला दीदी ने बात उठा दिया, उसको मैं लेके वापस आ रहा हूं। ये किस इंटेंशन के साथ इंदिरा जयसिंह ने डाला था, एवरीवन नोज, क्योंकि लव जिहाद केस में जो है ना, वो सबसे बड़ा रोलर जो है वो पॉस्को एक्ट बन रहा है, और उसमें हम लोगों ने कई ग्राउंड पे लव जिहाद केसेस सॉल्व किए हैं। दीदी का तो पूरा इस पे ये रिसर्च ही है। 16 साल, 14 साल, 15 साल की हिंदू बच्ची को भगा लेते हैं, निकाह हो गया, नाम चेंज हो गया, अब वो मुसलमान हो गई, यहां पर कोई कानून ही नहीं है। नहीं, इसमें आप ये देखिए, एक तो इस पूरे डिस्कशन पे, जो कि अभी आई थिंक इज गोइंग टू बी डेलिब्रेटेड इन द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक हफ्ता 2 हफ्ते पहले इस पे टीवी डिबेट्स हुई थी और मैंने अपना पक्ष रखा था। मैंने कहा कि दिस इज़ नॉट अ मैटर और नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ लॉ, इट इज़ अ मैटर ऑफ साइंस। इसमें लॉ कहाँ से आ गया? किसी सोसाइटी का मैटर हो उस पर आप लॉ ला सकते हैं, लेकिन कुछ डिसीजंस जो कि फिजिकल हेल्थ पे मैटर करती हैं, उस पे यू हैव टू टेक द बेनिफिट ऑफ व्हाट साइंस टेल्स यू। फॉर एग्जांपल, द लिमिट फॉर अबॉर्शन। अब सोसाइटी की कोई भी आपकी चॉइस हो, अल्टीमेटली साइंस हैज टू डिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, द मैरिज एज, सोसाइटी कल को कह दे कि आप 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं, कोई सोसाइटी कह दे, कई सोसाइटीज़ कहती हैं, तो इसका मतलब है कि आप अलाउ कर देंगे उसको। दूसरी बात, इंदिरा जयसिंह जी की जो आर्ग्यूमेंट्स थी, दे वर टोटली एंटीथेटिकल टू द लॉजिक गिवन बाय साइंस। उन्होंने 3 रीजनिंग्स रखी। एक रीजनिंग रखी कि जो पॉक्सो केसेस हैं वो उनमें 180% जंप आ गया है, क्योंकि आपने ये 18 ईयर्स कर रखा है, अगर आप उसको कम करेंगे तो पॉक्सो केसेस कम होंगे। मतलब ये लॉजिक देखिए, कह रहे हैं 9 भी कर सकते हैं। लॉजिक देखिए कि कल को हम ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हटा दें, लीगलाइज कर दीजिए मैरिजुआना, सारे ड्रग केसेस कम हो जाएंगे। मतलब ये लॉजिक है उनका। दूसरा उनका ये था कि आजकल यंगस्टर्स की प्यूबर्टी जल्दी आती है, तो अगर किसी की प्यूबर्टी 8 साल पे आ जाए तो आप कंसेंट कर देंगे सेक्सुअल? Exactly, that is the point. Exactly. मतलब ना तुक ना वो, बट बिकॉज शी इज अ लॉयर, शी कैन नॉक एट मिडनाइट, एज यू सेड, you know, Supreme Court judges are hearing her. The other thing is she is 85 years old. She doesn't have any progeny. She has no skin in the game. उनके तो पोते पोते भी नहीं है इस एज के. Why is a 85-year-old woman so interested and trying to control the sex life of Indian teenagers? Is nobody going to ask that question?
उनका लोकल स्टैंडिंग क्या है इस केस में, ये कोई क्यों नहीं पूछ रहा वो है? तो फिर इंडिया, वी हैड अ 75-year-old who was trying to dictate his own sex life 1947. आनंद सर, आप सर तन से जुदा करवा के यहाँ से माने सीधे जेल जाएंगे या बता दीजिए एयरपोर्ट भी? I will go to the questions now because there are a fair number of questions and I want to give maximum number of people justice. दो सवाल हैं, दो अलग अलग लोगों ने पूछे हैं, लेकिन सवाल लगभग एक ही है, so I'm clubbing it together. Kshitij from Delhi and B.N. Bharadwaj, both questions are addressed to Anand. Does the current government not realize that if Congress comes to power, it will take 1 month to undo what has been done in 11 years, as we have seen in Karnataka, and do what they have been mandated for quickly, or do they think they'll always be in power courtesy raga? दूसरा सवाल ऑलमोस्ट यही है, थोड़े से शब्द बदले हुए. ग्रेट क्वेश्चन, और इसके दो आंसर मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि ये सबके दिमाग में ये है, क्योंकि सबने कांग्रेस सरकारें देखी हैं, अभी सबने आपकी सरकार देखी है. जैसे ही केजरीवाल को पुलिस मिली, रातों रात जर्नलिस्ट अरेस्ट होने शुरू हो गए. जिन जिन लोगों ने शीश महल की बात करी थी, टाइम्स नाउ जर्नलिस्ट वाज अरेस्टेड रातों रात. SC/ST एक्ट में, SC/ST एक्ट में बताइए. तो बाकी सारा ऑपोजिशन, ममता क्या कर रही है? द मोमेंट दे हैव लॉ विद देम, लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स इट. तो बीजेपी, सवाल ये है कि क्या ये रियलाइज नहीं कर रही? दो रीजन है, या तो रियलाइज नहीं कर रही क्योंकि हुब्रिस इतना है कि हम कभी पावर से जाएंगे ही नहीं, और दूसरा ये है कि अगर हम चले भी गए तो फिर हम कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वही है ना. ठीक, it is by S. Basu. Is our economic growth riding on the demography, and are we missing the bus by not creating world-class products or brands? Will we stagnate once with the average age goes up? Anybody? नहीं, देखिए, if you were to rattle out the parameters as far as economy and finance is concerned, we are doing spectacularly well in the last 10 years. लेकिन आगे जाने का, आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो कोई भी देश विकसित नहीं हो सकता अगर उसकी 44% ऑफ एक्टिव लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हो, और वो एग्रीकल्चर सेक्टर है ऐसा जो कि सिर्फ 13.5 to 14% GDP को कंट्रीब्यूट कर रहा है. Impossible. From production to purchase, everything is medieval. And you have 300 million active labor force involved in this sector. Unless that changes, लेकिन वो किसी पॉलिटिशियन की हिम्मत नहीं है चेंज करने की. एक पॉलिटिशियन की थी और उसने किया भी था, और उसका नाम था नरेंद्र मोदी. लेकिन एक साल बाद क्या हुआ? जिन जिन लोगों ने कहा था हमें वही रिफॉर्म्स चाहिए, all those parties including the Congress that had it in its election manifesto, the verbatim 3 farm laws that would have catapulted us to a middle income economy within 10 years or 15 years, वो सारे यू टर्न ले गए, and ultimately Modi had to renege on his farm laws. So there are systemic changes that need to be made if we are to look forward and keep moving ahead with this pace, which unfortunately is not happening. शेफाली दी, मुझे भी इसमें एक 11 साल वाले में पॉइंट मेक करना था जो ज़रूरी था. दर्शकों, हम बात करते हैं विकास की. विकास बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विकसित तो फ्रांस भी था, विकसित तो ब्रिटेन भी था. वहाँ क्या हो रहा है? देखिए, जो आपके सामने कम्युनिटी है ना, वो विकास के लिए नहीं है. उसका सिंपल सा है. अभिषेक तिवारी के पास एक गाड़ी, एक घर है, मेरे पास 2 भाई है, वक्फ बोर्ड भी हमारे साथ में है. हम लोग जब ज़्यादा हो जाएंगे ना, सबसे पहले लूट लेंगे. तो ये सारा विकास जो है ना, डिस्ट्रक्शन में बदल जाएगा. इसलिए विकास जरूरी है, पर वो लोग जो जिनके लिए विकास कोई मायने नहीं है, उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. और वो 11 साल में अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि PFI पे बैन लगा है, मगर SDPI पे, उसके पॉलिटिकल विंग पे बैन नहीं लगाया आपने. और वो आप देख लीजिए, केरला का प्रभाव अब कर्नाटका में दिखने लगा. नहीं, मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा मित्र है, आसिफ. मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मेरे पास बंगला है, घोड़ा है, गाड़ी है, सब कुछ है, तेरे पास क्या है? कहता है मेरे पास वक्फ है. हाँ, वक्फ है. उसके पास वक्फ भी है, वक्त भी है. हाँ, वक्त भी है. अब अभी मैं उसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रखर सर से. हम कब तक हम सबका साथ सबका विकास हम पर थोपा जाएगा? क्या कभी SC/ST एक्ट की तरह कोई सख्त कानून देव निंदा पर भी आएगा?
नहीं, आजकल तो फैशन हो गया है ना कि भाई वो अगर पॉलिटिकली पॉपुलर होना है तो भाई एक बार भगवान विष्णु को, प्रभु श्री राम को, महादेव को तो गाली देना है। देखिए हमारे बिहार में इलेक्शन हो रहा है, खेसारी लाल यादव पूरा कैंपेन लड़ गया है राम मंदिर पे, पूरा चुनाव में राम मंदिर को गाली देता रहा। देव निंदा पे क्या कानून आएगा? जब न्याय की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति देव निंदा कर देगा तो उसके खिलाफ क्या कानून आएगा? अरे सर, ये तो आपने एकदम, ये तो आप भूल जाइए, इस तरह के कानून की तो बात ही मत कीजिए। लेकिन एक समाज के तौर पर हम जागृत हो गए। मैं तो पॉजिटिव चीज़ देखता हूँ कि 11 साल में हम इतने जागृत तो हो गए हैं कि अब कोई इतनी आसानी से देव निंदा करके बच के निकल जाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा। उसको जवाब तो देना पड़ेगा और ये धीरे धीरे चीज़ बढ़ती जा रही है। आनंद जी ने जो बात कही कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ठीक है, कांग्रेस सरकार आएगी तो उसको ये भी याद रखना पड़ेगा इस बात को कि आज से ज़्यादा मजबूत विपक्ष उस वक्त कांग्रेस के सामने होगा। और मेरा ये मानना है, आप साइंटिस्ट हैं, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि जब कोई एक चीज़ का दौर आता है, एक विचारधारा का दौर आता है, तो वो 70-80 साल तक वो जाता नहीं है। और हिंदुत्व की विचारधारा आ चुकी है, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन ये विचारधारा जाग चुकी है, ये आगे बढ़ चुकी है। और ये इतना किसी के सरकार आने जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये जवाब देने के लिए, जवाब मांगने के लिए खड़ी रहेगी जनता, ये मुझे ऐसा लगता है। देखिए, आप थक जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे, अगर कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट आई, इतने फोर्स से वो इम्प्लीमेंट करेगी ये सारी, जिसको फाशिस्ट अभी कह रहे हैं, 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, हम और लोग आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो चारों आई थिंक अंडमान में चक्की पीसते हुए नजर आए। नहीं, मुझे तो याद है दर्शकों, मैं बार बार अपने शोज में कहता हूँ, आनंद सर को तो तब भी न्यूज चैनल में बुलाया जाएगा, नहीं, क्योंकि एक तस्वीर में हमारी बगल में बैठेंगे तो एक वॉइस के लिए आनंद सर का तो काम चलता रहेगा। हमारा हमको नहीं मालूम हमारा क्या होगा, मुझे तो उठा के लेके जाएंगे। क्योंकि मैं बार बार एक और बात कहता हूँ, ये जो अंडमान और इनकी बात होती है, हमारे सबसे बड़े शंकराचार्य को कांचीपुरम के मठ से दीपावली की रात को घसीट के कांग्रेस सरकार लेके गई थी। और आप सब, उनमें से बहुत सारे बुजुर्ग भी सुन रहे हैं, हम सब थे, किसकी आवाज निकली, किसी के मुंह से चू निकला क्या? ये कांग्रेस है, और ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। बिल्कुल। अभी आप कर्नाटका में देखिए, आरएसएस का एक तरह से क्वाजी बैन उन्होंने आरएसएस की शाखा को बंद करने के लिए कराया है। बिल्कुल बिल्कुल। और 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। क्या हुआ उसका? People don't even know the names of the people who've been suspended. बिल्कुल बिल्कुल। My next question, and this is a very interesting question personally. Nivedita Malik Sharma, Mr. Anand Ranganathan, sir, how far is someone's transition from far left to far right possible? I am facing this dilemma personally, and I think you can help. नहीं, देखिए, फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन। एक तो आई डोंट नो योर एज, बिकॉज एज दे से, इफ you are not a communist before you are 20, you don't have a brain, and you don't have a heart. And if you're a communist after 20, you don't have a brain. So I don't know what your age is. But, far left is dangerous, is the most dangerous entity anywhere. So is the far right. But India mein you have to define. You really have to define. You know what is left, because the left goes by their ummah, the political ummah, like the Muslim Brotherhood, you have a left brotherhood. So they have their principles. Right के इंडिया में क्या principles हैं, ये किसी को पता नहीं है। एक तरह, जैसे मैं कहता रहता हूँ, the right in the established Western societies are nationalist, conservative people. We are not. मैं इस पे आर्टिकल लिख चुका हूँ। हमें लगता है हम नेशनलिस्ट हैं। इनफैक्ट एम्बेरसमेंट से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसका वो आप टैग बाईलाइन देखिए जयपुर डायलॉग्स का, क्या है? राष्ट्रवादियों का महाकुंभ है। हम नेशनलिस्ट हैं ही नहीं, हम पेट्रियट्स हैं। तो हमें खुद नहीं पता कि हम क्या हैं, इन द सेंस कि हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। हम राइट हैं, हम कॉम्पिटिटिव हैं, हम आइडियाज़ आगे लाते हैं, हम डिस्कस करते हैं, हम लिबरल हैं। I think the best definition that fits us is not right or far right, it is non-left. Non-left. एक धीरज आहूजा जी का प्रश्न है, 15% मुसलमानों को 32% स्कीम का लाभ देने के पीछे का मोह भंग कब होगा? आप इसको ज़्यादा बेटर एड्रेस करेंगे, लेकिन इसमें मेरा एक एडिशन है। ये तो सर मेरा मानना है कि मुसलमानों का ये जागृति है। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को बहुत कवर किया है, हम लोग नहीं जाते, लेकिन उनकी लाइन जो है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है, तो वो अच्छे से हर स्कीम को यूज़ करना जानते हैं। बाकी सर आप यहाँ पर फिर मेरा व्यक्तिगत अनुभव काम आएगा जवाब देने में। अभी बिल्कुल 5 या 6 दिन पुरानी बात है,
मेरे मन में ये सवाल आया कि मुझे जब इतना ही इस तरह के आरोप सरकार पे लगते रहते तो ये मालूम पड़ना चाहिए कि जो लाभार्थी जो हैं मोदी सरकार के, उसमें कौन किस संप्रदाय से, ज़रा मालूम पड़ जाए। तो मैंने अल्पसंख्यक मंत्रालय में एक व्यक्ति हैं मेरे साथ, पहले काम कर चुके हैं, अभी वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे मैंने डेटा मांगा कि जो भी आपकी योजना है, खासकर 5 या 6 जो बड़ी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, स्वास्थ्य हो गई, सारी जो 5-6 बड़ी योजना हैं, इसमें आप बता दीजिए कि अल्पसंख्यक जो समुदाय है उसको कितने लाभ मिले, क्या परसेंट। ही मानेंगे कि अल्पसंख्यक मंत्रालय के पास इस तरह का कोई डेटा ही नहीं है। उन्होंने आज तक ये डेटा ही तैयार नहीं करा है कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं उसमें अल्पसंख्यक समुदाय को कितना लाभ मिल रहा है, ये डेटा तक तैयार करने की उस मंत्रालय ने जहमत नहीं उठाई है। ये सब जो ये आपने तो दिया, ये हो सकता है, संभव है, और ये 32% जो आया इससे भी कहीं ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कोई इस पे काम नहीं कर रहा है। और दुनिया भर में आपको इंडेक्स जो आते हैं कि भारत अल्पसंख्यकों के लिए ठीक नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक परेशान है, भारत में अल्पसंख्यक को आज़ादी नहीं है, भारत में अल्पसंख्यक पे हमले बढ़ रहे हैं, ये तमाम विदेशी मीडिया आप पे आक्रमण और हमले करते रहते हैं। और आपके मंत्रालय ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई है कि वो एक डेटा तैयार कर लो, उनके मुंह पे फेंक के मार सको वॉशिंगटन पोस्ट के मुंह पर कि भाई तुम जिसको कह रहे हो कि अल्पसंख्यक परेशान है, इस स्कीम के अंदर 40% लाभार्थी ये हैं। आनंद सर, इसमें मैं आनंद एक सर, हाँ, जरा सा मतलब बस ऐड करना चाहूँगा कि ये डेटा मैंने कोट किया हुआ है क्योंकि जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर थे, नकवी थे शायद, हाँ, हाँ, नकवी वो साहब। मेरा गुस्सा। हाँ, उन्होंने ये डेटा दिया था इंडिया टुडे की कॉन्क्लेव में। तो उन्होंने, ये पुरानी बात हो गई होगी बहुत, ये करीबन 4 साल पुरानी बात है, 4 साढ़े 4 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने ये बताया था कि 33% ऑफ आवास विकास योजना, 29% ऑफ किसान सम्मान निधि, उन्होंने ये परसेंटेज दी थी। तो वही मैंने कोट किया। बट यूर राइट कि मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल, अब उनको आप ऑफिशियल मिनिस्टर ही मानेंगे तो उनका डेटा ही चल रहा है। हाँ। लेकिन देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इफ़ यू थिंक अबाउट इट लॉजिकली, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप क्रिएट कर सकते, क्योंकि भले ही आपकी पॉपुलेशन 15% मुस्लिम है, अगर 40% ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इज होमलेस और 40% ऑफ द होमलेस पीपल आर मुस्लिम्स, बाय वर्च्यू ऑफ देम बीइंग इन द लाइन, दे वुड बी प्रोवाइडेड ऑटोमेटिकली होम। और तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो फायदा उठा रहे हैं। अब वो उनका तत्बा ऐसा है कि दे रिक्वायर दोज वेलफेयर स्कीम्स मोर देन द परसेंटेज ऑफ देयर ओन पॉपुलेशन, सो लीगली you cannot do anything. There's another aspect to it which I wanted to talk in some other session, but I will talk about it. देखिए, मेरे अनुभव में ये है कि हिंदू जैसे ही इकोनॉमिकली नेक्स्ट रंग में जाता है, चाहे अब किसी भी रंग में हो, तो पहली बात वो ये करता है कि सरकारी सर्विसेज पे डिपेंड करना छोड़ देता है. So the minute a Hindu can afford it, he doesn't go to the government hospital, he goes to a private clinic. The minute a Hindu can afford it, he will send his children to a private school, not to a government school. तो ये जो सारे वेलफेयर्स, आप कहीं पे भी सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और देखो पेशेंट कौन है, आप कहीं पे भी सरकारी स्कूलों में जाओ, कहीं पे भी अक्रॉस इंडिया, और देखो सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ रहा है. सो दैट इज ऑल्सो आई थिंक अ फैक्टर इन दिस वेलफेयर थिंग्स. बट मैं इस बात को, शेफाली जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा और आनंद जी की बात को आगे बढ़ाऊंगा. हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों को बात मेरी पसंद ना आए, लेकिन जो मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए कि लाभार्थी होने का ये भी मतलब नहीं है कि वो वोट देने को बाध्य है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अरविंद केजरीवाल थे, अगर मुफ्त बिजली बांट रहे थे वो दिल्ली में, तो बीजेपी का भी वोटर फायदा उठा रहा था ना. बिल्कुल बिल्कुल. जब कमलनाथ की सरकार बनी मध्य प्रदेश में, 1.5 साल चली, तो उसने किसानों के कुछ कर्ज माफ करे. तो जो बीजेपी का वोटर किसान था वो भी कर्ज माफ करवा रहा था. बिल्कुल. तो भाई वो लाभ तो लेंगे, क्योंकि स्कीम चल रही है, उसके अंतर्गत वो आते हैं. जो आनंद जी ने बात कही, वो लाभ तो लेंगे. आप वोट डालने के लिए बाध्य नहीं कर सकते. अब आपको अब मैं थोड़ी सी ऐसी बात कह रहा हूं कि जो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, अब आगे ये मुंह तक तो बोल ही देता हूं. आपको अपना एक सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो देखेगी कि कौन किसको लाभ देना है और किसको लाभ नहीं देना. नहीं, मेरा एक अनुभव भी है इसमें. जब एक विधायक चुना जाता है और उससे कोई लाभ लेना होता है मुसलमानों को, तो 500 लोगों की जमात उसके पास जाती है कि साहब हमारा एक सड़क के किनारे छोटा सा ये है, थोड़ा फंड देते तो वहां पे हम मजार क्रिएट कर देते. अब 500 लोग विधायक के पास जाएंगे ना, चाहे वो बीजेपी का विधायक हो, उसे लगेगा क्या पता मेरे इसके कारण इसमें से 30-40 वोट शिफ्ट हो जाएं, तो वो काम करेगा. हिंदू कभी ऐसे नहीं करता कि मेजॉरिटी में अपने ही विधायक, अपने ही सांसद से कोई काम करवाए और क्वेश्चन पूछे. कोई सोसाइटी खुद से खड़े होकर जाती नहीं है. मेरा पर्सनल अनुभव है हिंदुओं को लेकर के. हिंदुओं को इसमें चीजें करेक्ट करनी पड़ेगी इस मामले में. फेयर पॉइंट. दिस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत दिलचस्प सवाल है, इसलिए मैं लेना चाहती हूँ. नवनीत जयपुर से हैं.
कांग्रेस मुक्त भारत देश के लिए अच्छा है या फिर उससे भाजपा को ही लाभ होगा? प्रखर जी। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया तो बीजेपी को तो बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जब तक कांग्रेस है तब तक इसके पाप गिना गिना के बीजेपी को हमेशा फ़ायदा मिलता रहेगा। तो कांग्रेस मुक्त भारत जो है वो भारत के लिए कितना लाभप्रद है ये तो नहीं मालूम, लेकिन बीजेपी के लिए ज़रूर इससे नुकसान ही होगा। नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत लोग शायद ये जानते ना हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी ने स्पॉन्सर करवाई थी। अभी देखिए 15-20 एमपी तो वहीं से आ गए थे। अभी ये देखिए सर, बिहार चुनाव से ठीक दिन पहले, एक दिन पहले, वोटिंग से एक दिन पहले हाइड्रोजन बम फोड़ा। नहीं, बीजेपी बुरा मान गई थी, तेजस्वी से लड़ाई हो गई, राहुल को करने दो ना प्रचार, क्यों नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ मोदी जी सुबह उठ करके महादेव का नाम लेने के बाद यही कहते होंगे, हे महादेव राहुल गांधी को सुरक्षित रहना। One more question, and this is the last question क्योंकि I just have 2 minutes. Do you think social media is good for India over mainstream media? आप दोनों ही ले सकते हो। 100%, 1000%। मेन स्ट्रीम मीडिया तो मेरी आदत है कि मॉर्निंग एब्ल्यूशन से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया पढ़ना पड़ता है। वरना इट्स एब्सोल्युटली, एक तो न्यूज़ थोड़ी स्टेल हो जाती है, मतलब 24 घंटे की। स्पोर्ट्स कवरेज अच्छी होती है इसलिए पढ़ लेता हूँ, और हर जगह एक कंडेंस्ड फॉर्म सारी न्यूज़ का न्यूज़पेपर देता है, वो अभी भी स्क्रॉल करके मिलना मुश्किल है उस तादाद में। अदरवाइज you get great news, you get great opinions only on social media, so it's completely overtaken. बिल्कुल, जैसे हम सुबह जो प्लान बनाते हैं उसमें हमारा पूरा ये तो प्लान होता है कि आज शाम को हम क्या करेंगे, वो सोशल मीडिया से डिसाइड होता है। और यहाँ पर मैं एक अच्छी बात, इस बात से अपनी बात समाप्त करूँगा कि जो हम बात कर रहे थे, जितने विषयों पे बात करी हमने, न्यायपालिका की बात करी कि वो कहाँ गलत है कहाँ सही है, तो एक हाई कोर्ट जज है, मेरे जानने वाले हैं और मेरे से उम्र में 1 आध साल ही बड़े, तो मैं उनसे लिबर्टी ले लेता हूँ हर तरह की बात। उनका नाम बता दीजिएगा, मुझे ज़रूरत पड़ सकती है। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, सोशल मीडिया आया तो सबसे पहले उसने जो है नेताओं को उसने साइड किया, मतलब सीधे जनता नेता से भिड़ गई। उसके बाद बारी आई अधिकारियों की, जनता सीधे अधिकारियों से पूछना शुरू कर दी। तीसरे लाट साहब हम अपने आप को मीडिया वाले समझते थे कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, जो हम दिखाएंगे वही तुम्हें देखना पड़ेगा। तीसरा, उसने हमसे सवाल पूछ के हमारी औकात उसने दिखा दी। मैंने उनसे कहा, मिलॉर्ड, चौथा नंबर आपका है। और मैंने पूरे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जो है पूरे भारत को जेल नहीं बना पाओगे आप। तो अब जब देखते हैं कि जब कोई प्रेशर आता है, कोई डिसीजन आता है, तो जो बाढ़ लगती है, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा जाता है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी चिंता व्यक्त करने लगे हैं सोशल मीडिया को लेकर। तो ये सोशल मीडिया ही है जो आपको सारी समस्याओं से निजात दिलाएगा। जो आपके मन में जितने भी सवाल 1 घंटे में उठे हैं, ये सारे सवाल जो आपके हल हो पाएंगे तो सोशल मीडिया से हल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, समय हो चुका है। बहुत अच्छा और बहुत एंगेजिंग डिस्कशन था। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद का और प्रखर जी का और अभिषेक का। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू शिफाली, थैंक यू प्रखर।